Hello guys, welcome back to my channel. I am Navya and today we are going to discuss some important questions of your chapter number 1. The name of the chapter is How, When and Where. So basically in this video what we are going to do is I have selected some important questions out of the whole chapter which are going to come in your exam directly or indirectly. Definitely they are going to come because they are the most important questions which have been picked out of the entire chapter. So watch this video carefully to understand all the expected question answers from this chapter, and definitely if you will watch this video properly then you are going to rock in your exam because आपके मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे. One more disclaimer that these question answers have been done by one of my students. The answers have been written very nicely. So here I am going to explain you that how you are going to write the answer for each question. And in this video, these are the ideal answers written by the student. So hats off to the girl who has written all the answers very nicely and as per the instructions which were given to her. Alright, so let us start. This is your chapter number 1 of your history book. The name of the chapter is How, When and Where. So first of all, this is the pictorial depiction which was given, and this is basically a mind map. Now what is mind map? Mind map is something which help you to summarize whole of the chapter in one page. Mind map can help you to summarize the chapter in one page. For example, here it has been written, see, name of chapter is How, When and Where. तो कैसे इसको पढ़ सकते हैं हम? सबसे पहले आता है what is history. तो history क्या है? It is about the changes that occur over a period of time. Then second thing is that we cannot fix a precise date for processes. कि हर एक चीज़ के लिए एक precise date नहीं हो सकती है. We fix dates for some events but for some other events we cannot fix a date. तो हर एक चीज़ के लिए एक particular date हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. Then comes what is colonization. So colonization is when one country is subjugated by another country, and this subjugation leads to different changes, and it is called colonization. Then dates, how important are dates? So dates depends upon the focus of our study. So it is written, it is according to the focus, that if our focus is on the life of governor generals, then those dates are important. If we will change our focus from governor general to say common people, then we will get new dates and those dates will become important. So it depends upon our focus कि हम कहाँ focus कर रहे हैं. अगर हम कॉमन पीपल की लाइफ पे फोकस करेंगे तो हमारे लिए कोई और डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. अगर हम गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे सो डेट्स रिलेटेड टू देयर लाइफ, व्हाट दे डिड, देयर अचीवमेंट, देयर पॉलिसीज, दोज डेट्स विल बिकम इम्पॉर्टेंट, राइट. देन अनदर थिंग इज सर्वेज के बारे में पढ़ा होगा आपने इस चैप्टर में कि सर्वेज, ब्रिटिश स्टार्टेड सर्वेज बिकॉज दे बिलीव्ड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दी कंट्री बिफोर गवर्निंग इट. पहले कंट्री को जान लो उसके बाद ही तो उसको अच्छे से रूल कर पाएंगे, उसको अच्छे से गवर्न कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई ब्रिटिश स्टार्टेड सर्वेज. देन इट इज़ रिटन दैट दे ऑल्सो सेव्ड रिकॉर्ड्स बिकॉज ब्रिटिशर्स को लगता था कि राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रिटिश बिलीव दैट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर चीज़ों को लिखेंगे तो आगे फ्यूचर में हम उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं. वी कैन स्टडी देम अगेन. हम उन पर दोबारा से डिबेट कर सकते हैं. तो मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ आज डिस्कस कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सो दैट शुड बी रिटन ताकि फ्यूचर में उसकी रेफरेंस लेके हम उसको दोबारा रीस्टडी कर सकें, उस पर डिबेट कर सकें. हो सकता है पहला डिसीजन गलत हो, उसमें कुछ चेंज करना हो, उसमें चेंजेस कर सकें, उसको री इम्प्लीमेंट कर सकें. सो राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. राइटिंग इम्पॉर्टेंट थी. सो वट एवर दे रोट दे यूज टू प्रिजर्व देम. अब उसको प्रिजर्व करने के लिए कहीं रखना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया, हर एक ऑफिस के साथ, जो भी ब्रिटिशर्स के यहाँ ऑफिस होते थे उसके साथ एक अटैच कर देते रिकॉर्ड रूम्स. सो ब्रिटिशर्स हैड रिकॉर्ड रूम्स इन एवरी ऑफिस, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे वो कमिश्नर का ऑफिस हो. उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रूम स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया कि ये एक ऑफिस है, ऑफिस के पास ही वहीं पे हर एक ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम होगा जहाँ पे उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा. उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आज हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ पा रहे हैं बिकॉज दे हैव प्रिजर्व्ड दोज रिकॉर्ड्स, दे हैव प्रिजर्व्ड ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वी आर एबल टू नो अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम दोज रिकॉर्ड्स, दोज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑल्सो उन्होंने क्या किया था ब्रिटिश ने, दे फेल्ट दैट सेविंग रिकॉर्ड्स वर इंपॉर्टेंट, सो दे मेड आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स. सो म्यूजियम्स में, आर्काइव्स में, रिकॉर्ड रूम्स में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को
फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर दिया. What else was there in your chapter? It was also there that periodization वाला जो था, that जेम्स मिल आते हैं, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था जेम्स मिल, आपने सुना होगा. ही वॉज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड द फिलोसोफर. इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम किसी को याद है? वेरी इंपॉर्टेंट बुक, 100% 1 मार्कर में पूछी जा सकती है. और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है. इस बुक में इन्होंने क्या किया था? ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स एंड दोज 3 पार्ट्स वर, जेम्स मिल ने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में. वो 3 पार्ट कौन से थे? इट वाज हिंदू, देन मुस्लिम एंड देन ब्रिटिश. दिस वॉज द डिविजन डन बाय हिम. एक पीरियड को उन्होंने बोला हिंदू, एक को बोला मुस्लिम, एक को बोला ब्रिटिश. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी? द प्रॉब्लम वॉज कि उन्होंने इन दोनों एरा को तो बताया लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कि हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड वो तो था लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, और ब्रिटिश पीरियड जो था दैट वॉज मॉडर्न, दैट वॉज एडवांस. और प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने बोला जो हिंदू और मुस्लिम पीरियड है, सो बेसिकली डिवाइडेड आर हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर, कि जो रूल कर रहे थे उस टाइम पे, जो रूलर का रिलीजन था, उसी रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने पूरे हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया. सो दिस वाज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि जब हिंदूज वर रूलिंग तो उस टाइम पे एवरीवन वाज हिंदू. नो, जो जनता थी वो तो सब अलग अलग फेथ के थे ना. तो दैट इज़ रॉन्ग. जब मुस्लिम रूल कर रहे तो ऐसा नहीं कि ऑल द पीपल इन इंडिया वर मुस्लिम ओनली. नो, दे आर एग्जिस्टेड डिफरेंट फेथ्स. सो दैट वाज रॉन्ग. तो इसमें ये प्रॉब्लम्स थी. उसके बाद जो बाद में हिस्टोरियंस आए उन्होंने अलग डिवाइड किया हिस्ट्री को. उन्होंने कैसे डिवाइड किया? उन्होंने किया आज का जो मॉडर्न डिवीजन है, जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. एंशिएंट मतलब वो जो आप ग्रेड 6 में पढ़ के आए हो, मेडिवल मतलब वो जो आप ग्रेड 7 में पढ़ के आए हो, और मॉडर्न इज द वन विच यू आर गोइंग टू रीड अबाउट इन ग्रेड 8. सो इसमें भी प्रॉब्लम थी. द प्रॉब्लम वॉज हिस्टोरियंस यूज टू एसोशिएट मॉडर्निटी विद दिस मॉडर्न पीरियड. बोलते थे जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इट इज़ रिलेटेड विद मॉडर्निटी, इट इज़ रिलेटेड विद साइंटिफिक डेवलपमेंट, इट इज़ रिलेटेड विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, all this. But that was not true, because you know British period में just try to recall, you must have heard about this, कि when Britishers were ruling in India, तो क्या Indians को equality थी? No. So how can you say that this modern period reflects modernity and all the new concepts like equality, liberty, modernity? There was no equality, there was no liberty given to Indians. Then this consideration that this period was modern, this is wrong. Another thing they said that these period, he said specifically कि Muslim period, ancient period, these did not have any modernity, no scientific development. तो ये भी गलत है. Ancient और medieval में you must have heard about the name of like Patanjali, Bhaskaracharya was there, Charak was there. Lots of development was there in ancient history as well, in the field of medical science, astronomy, yoga. So much of development was there. How can you say that there was no development in the time of ancient or medieval history? Also, I told you that during the Battle of Panipat, which was fought in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi, if you recall from grade 7. So इसमें क्या था? बाबर first time, it was the first war in which cannons were used. Cannons were used for the first time by Babur. How can you say there was no modernity or no development in Muslim period? Or I should say medieval period. Medieval is the correct word, right? So इसलिए ये भी इसमें भी एक प्रॉब्लम थी. So ये सब आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा होगा. फिर आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा होगा कि वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और लास्ट गवर्नर जनरल जिनका नाम बाद में वाइस रॉय हो जाता है. गवर्नर जनरल का नेम वाइस रॉय क्यों हो जाता है? इफ़ यू नो द आंसर, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. That why the name of Governor General, the post Governor General, why it was turned into the post of Viceroy? What was the difference when it was done? Let me know if you know this, and otherwise I am going to explain this in chapter number 5. जो आपको chapter number 5 आएगा, Revolt of 1857, some hint is given to you. So search it if you know the answer. So that's all about whole of this chapter. तो अभी आपने देखा माइंड मैप से क्या होता है. माइंड मैप से पूरा चैप्टर आपको आपका खुद एक छोटा सा शॉर्ट समरी आपने खुद ने बनाई, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू रिवाइज. एग्जाम से पहले अपना ही माइंड मैप खोल के देख लो, एंड यू विल रिवाइज होल ऑफ द चैप्टर इन जस्ट 5 to 10 minutes. पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा. दिस इज़ द यूज़ ऑफ माइंड मैप. ओके, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं.
सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि कॉलोनियल या कोलोनाइजेशन क्या होता है। यू नो व्हेन वन कंट्री इज सब्जुगेटेड बाय अनदर कंट्री, मींस दिस इज सपोज इंडिया एंड दिस इज ब्रिटिश, सो दिस कंट्री इज सब्जुगेटेड बाय ब्रिटिश, इंडिया वाज सब्जुगेटेड बाय ब्रिटिश। सो व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री लीड्स टू मैनी चेंजेस, और इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हुए। आपको पता है ना, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारे चेंजेस लेके आए वो, वेदर इट वाज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर इट वाज कस्टम, वेदर इट वाज अदर रिलीजियस थिंग्स, many changes were brought by the Britishers in India, and that was during this colonial period, and that whole of the process is termed as colonization. So when India was the colony of British, when British subjugated India, when Britain subjugated India, and India was a colony of Britishers, at that time it brought about several changes in the country, and this whole process was called colonization. So you can read it from here, that when it is the time period when the subjugation of one country by another country leads to political, economic, social, cultural changes, we refer to the period as colonial. वो पीरियड जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और उस कंट्री में बहुत सारे चेंजेस करती है, पॉलिटिकल चेंजेस करती है, कल्चरल चेंजेस करती है, सोशल चेंजेस करती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं, या उस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं. Fine. Second is archives. Now what is archives? I just told you it is a place where the British used to preserve their official documents, or used to preserve their important say records. So what is archives? It is a place where important records are kept and preserved, are called archives, or you can just write it here only, are preserved. The place where important documents are kept and preserved, they are called archives. ठीक है. What is survey? You all know survey होते हैं. So survey is what? We are basically trying to map out the country. जब country के बारे में हमें जानना होता है तो हम लोग surveys कराते हैं. So it is a method through which we map the entire country to collect information about different things. That is called survey. सो क्या लिखा है? एक्शन ऑफ मैपिंग द एंटायर कंट्री. तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? मैपिंग द कंट्री. कंट्री को मैप करना, मतलब कंट्री का एक एक चीज़ के बारे में जानना, पूरा मैप सामने लेके आना. क्यों करना है मैप कंट्री को? क्यों जानना है कंट्री के बारे में? टू ऑब्टेन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स. क्या रिकॉर्ड्स? डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, या फिर यू कैन राइट डिटेल इन्फॉर्मेशन. किसके बारे में? ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग वहाँ रहते हैं, कैसी वहाँ की टोपोग्राफी है, क्या वहाँ प्लेन्स हैं, प्लाट्यूज हैं, माउंटेन्स है, क्या है. टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. लोकल हिस्ट्री को जानने के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न जानने के बारे में, एंड एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन अ कंट्री एंड यू वॉन्ट टू मैप द एंटायर कंट्री, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड सर्वे. So basically survey क्या है? It is the act through which you collect information about one particular area. ठीक है. What is survey? It is an action of mapping a particular area to collect information about different things like the topography, soil, population, education, health, and whatnot. Right. Then comes the very short answer type question. This is simple. History of British India was written by, I told you, very important question. The answer is James Mill. इसको लर्न करके जाना, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा. द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स, कैलीग्राफर इंपॉर्टेंट वर्ड है. कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? वो बंदा जो बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखता हो. ठीक है. तो वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफर. द सी पॉइंट, वन हु इज स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. मतलब जब तक प्रिंटिंग नहीं डेवलप हुई थी तो उस टाइम से पहले इन कैलीग्राफर्स की भाई बहुत ज़रूरत पड़ा करती थी, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उनको लिखवाया जाता था कैलीग्राफर्स से, तब उनको प्रिजर्व किया जाता था आर्काइव्स और म्यूजियम्स में या फिर रिकॉर्ड रूम्स में. तो कैलीग्राफर्स क्या करते थे? वो बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में वो सब चीज़ों को कॉपी करते थे. सो द वन हु इज स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफर. फिर जब प्रिंटिंग आ गई तो जी कैलीग्राफर्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. द कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ डैश. तो आपको पता है ब्रिटिश ने बहुत ध्यान दिया सर्वे, क्योंकि जब पहले कंट्री को जानेंगे तभी तो उसको रूल करेंगे. चीज़ों को जब गेम के जब तक रूल समझ नहीं आएंगे तब तक गेम को खेलोगे कैसे? टू विन इन अ पर्टिकुलर गेम, यू आर सपोज टू नो द रूल्स ऑफ दैट गेम.
तभी तो खेल पाओगे। सिमिलरली कंट्री को रूल करने के लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए आपको कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा। और जानोगे कैसे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करोगे? सर्वेस के थ्रू करोगे। तो सर्वेइंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज historians have usually divided Indian history. It is written usually. ये ज़रूर देखना है। अगर पूछे जेम्स मिल ने कैसे डिवाइड किया, जेम्स मिल ने तो किया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन अगर पूछे यूजुअली कैसे किया गया है, जो एक्चुअली बहुत एक्सेप्टेड है, जो हम आज भी यूज़ करते हैं डिविजन, दैट इज एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। Then Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization. तो आंसर इज लोअर, बिकॉज आपने देखा ना कि उसने हिंदू और ब्रिटिश मुस्लिम पीरियड को क्या बोला कि यहाँ पे इन लोगों को कुछ नहीं आता एंड दे आर लो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर कह सकते हैं दे आर लेस सिविलाइज्ड। तो इंडियंस को उन्होंने या एशियंस को उन्होंने लेस सिविलाइज्ड बताया था। तो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है। यूरोप को एडवांस बताया था, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी आर वेल सिविलाइज्ड पीपल, राइट। Then the British established specialized institutions like dash and dash to preserve important documents. अब तक तो याद हो गया होगा क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या बनाया था? आर्काइव्स बनाए थे और म्यूजियम्स बनाए थे। क्या होता है आर्काइव्स? ये एक जगह होती है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है ताकि फ्यूचर में उनको दोबारा से पढ़ सकें। आपने देखा ना, आज भी अगर आप जाओ किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कि कोई पुरानी फाइल निकालनी हो तो बहुत सारी धूल भरी होती है, उनमें से एक फाइल निकाल के गवर्नमेंट ऑफिसर आज भी आपको दे देगा। तो ये प्रैक्टिस कब से शुरू हुई? ब्रिटिश के टाइम से चल रही है कि जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको प्रिजर्व कर लो, आगे काम आएंगे। तो उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे प्रिजर्व किया गया है? आर्काइव्स में, ठीक है। अब हु वाज जेम्स मिल? बहुत बोल लिया, जेम्स मिल ने ऐसे बोला, जेम्स मिल ने वैसे बोला। तो कौन थे जी जेम्स मिल? सिंपल है, वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, जिन्होंने की एक बुक लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। Then, which evil practices, according to James Mill, dominated the Indian social life before the British came to India? So the question is asking कि जेम्स मिल ने बोला था कि जब ब्रिटिश के आने से पहले बहुत सारी सोशल ईविल प्रैक्टिसेस इंडिया में थी। तो कौन सी वो सोशल ईविल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं जेम्स मिल? तो जेम्स मिल वाज टॉकिंग अबाउट दैट अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल देयर वाज रिलीजियस इंटॉलरेंस। इंडियंस के बीच में क्या थी? रिलीजियस इंटॉलरेंस थी। तो लोग रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट थे, मतलब कुछ भी रिलीजन के अगेंस्ट सुनेंगे ही नहीं सामने वाले से। किसी ने रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी बोल दिया तो बस उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। सो देयर वाज रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब रिलीजन के नाम पे लड़ाई झगड़े हो जाते थे। कास्ट टैबूज, कास्ट टैबूज बहुत थे, लो कास्ट, अपर कास्ट, हायर कास्ट, इन सब में लगे रहते थे। तो ये भी जेम्स मिल ने बोला। देन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे, सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था, काले जादू में बिलीव कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक एंड वॉट नॉट, ठीक है। देन दीज प्रैक्टिस डोमिनेटेड दी सोशल लाइफ बिफोर द ब्रिटिश केम। तो जब ब्रिटिश आए उससे पहले इंडिया में क्या था? रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, रिलीजन को लेके लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, ठीक है। रिलीजन के नाम पे लड़ाई झगड़े हो जाते थे। कास्ट टैबूज थे, लो कास्ट था, अपर की लो कास्ट यहाँ नहीं जा सकता, अपर कास्ट के यहाँ पे लो कास्ट ऐसे नहीं कर सकता, एंड ऑल दीज थिंग्स। देन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, लोग अजीब अजीब सी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे। And all these things were there in India before the British came, as per James Mill. जैसे आपने एक social evil practice के बारे में सुना होगा, which is sati. Tell me if you know about the sati practice in India. If you know something about this, let me know in the comment section down below, right? Then let's come to question number 6, which is what do, एक second, here it is. What do official records not tell? अब official records मतलब जो ब्रिटिशर्स ने ऑफिस में बैठ के जो भी उनके ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बोलते थे, जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, ठीक है, जो हमें आज आर्काइव्स और म्यूजियम में मिलते हैं। तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स किस बारे में थे? वो बेसिकली बात करते थे कि जो ब्रिटिश थे वो क्या सोचते थे, क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट ब्रिटिश, वॉट ब्रिटिश थॉट, what was important for British, what they wanted to save for their posterity। ये आपकी NCERT में एग्जैक्ट लाइन लिखी है कि वो अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या बताना चाहते थे। उन मेन चीज़ों को वो लोग अपना सेव करते थे, उन चीज़ों के बारे में ही वो लोग लिख के उसको प्रिजर्व करते थे। अब डिपेंड करता है ना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना चाहूँ, सो आई विल राइट समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू माई लाइफ, राइट। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा अपनी लाइफ से रिलेटेड, आई विल राइट दोज थिंग्स। इफ़ आई विल से that writes certain important events of your life, then you will write something related to your life only, which is important to you, right? So ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो उनको इम्पोर्टेंट लगा, जो उनके इंटरेस्ट में था, और
जो वो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना स्टोर करना चाहते थे, उसको प्रिजर्व करना चाहते थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा। सो वॉट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो ब्रिटिशर्स ने लिखा, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या चीज़ मेंशन नहीं थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कॉमन पीपल के बारे में कुछ नहीं था। व्हाट कॉमन पीपल वर डूइंग, भाई उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उस टाइम पे इंडियंस क्या कर रहे थे, इंडियंस की कैसी सोशल लाइफ थी, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन कैसे जी रही थी, उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, what was their social practices, how common people were living their life, how they used to struggle, उसके बारे में कुछ है ही नहीं। nothing was related to common people। सब लोग उन्होंने अपने बारे में ही लिखा हुआ है, what they felt is important, उनसे रिलेटेड वही लिखा है, जो गवर्नर जनरल ने किया, उनकी पॉलिसी, उनके रूल्स, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। कॉमन पीपल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल, यू विल राइट दैट टेल अबाउट व्हाट ब्रिटिशर्स थॉट, what they thought, what they wanted to say for their future generation, that is there in the official records। and what official records did not tell, क्या वो नहीं बताते, तो कॉमन पीपल के बारे में जी कोई इन्फॉर्मेशन हमें उनसे नहीं मिलती है। फिर ये मैच द कॉलम है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। मैच द कॉलम में दिया हुआ है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, 4 ऑप्शन है। A place where historical documents or records of a government etc are kept। भाई अब तो पता चल गया होगा, इतनी बार बोल दिया। बताओ जी आंसर जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा, बताओ मुझे जल्दी से। देन ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। सेकंड वन, अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट टू शो देम टू द पब्लिक। पब्लिक को दिखाने के लिए म्यूजियम है, जाते हो ना म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, डॉल म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम, ठीक है। तो पब्लिक को दिखाने के लिए बिल्डिंग में जो भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को सेव किया जाता है उनको क्या बोलते हैं हम? म्यूजियम। थर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? मेन इंपॉर्टेंट था सर्वे, कैरिंग आउट दी सर्वेस। ब्रिटिशर्स को लगता था भाई सर्वे कर लो, पहले इंडिया के बारे में जान लो, फिर इसको रूल करेंगे, ठीक है। देन सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री, सब्जुगेशन वर्ड बहुत बार बोल दिया, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल करती है और उस कंट्री में बहुत चेंजेस लेके आती है, उनके टेस्ट में, उनके प्रेफरेंस में, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस में, उनकी पॉलिटिकल चीज़ों में और उनकी रिलीजियस चीज़ों में, तो जब वो इस पूरे प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। यू आर वेरी स्मार्ट, राइट? ओके, मूविंग फर्दर, शॉर्ट आंसर पे आ जाओ। शॉर्ट आंसर के लिए एक चीज़ दिमाग में रखनी है हमेशा कि शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स का होता है जी? 3 मार्क्स का होता है। तो हमें क्या लिखना होगा? हमें बिल्कुल 1 2 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, तभी हमें 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। इफ़ यू विल नॉट राइट 3 पॉइंट्स यू विल नॉट गेट 3 मार्क्स। 2 पॉइंट लिखोगे तो 2 ही नंबर मिलेंगे, और पैराग्राफ में लिखोगे तो दैट डजंट लुक वेरी नाइस, इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव। आपने जो चीज़ 3 पॉइंट में लिखी है ना, वही चीज़ आप एक ही पैराग्राफ में लिख दोगे ना, 100% कह रही हूँ, आधा नंबर 1 नंबर कम ही मिलेगा। बिकॉज वो पैराग्राफ में हर चीज़ ना हाईलाइट नहीं हो पाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, इट विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स रादर फुल मार्क्स, राइट? Okay, so the question is, historians divide Indian history into ancient, medieval and modern, but this division too has its problems. What are these problems? So question कह रहा है जी, historians ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है एंशियंट, एक है मेडिवल, एक है मॉडर्न। आप कहोगे ये तो हमें पता है जी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बट दिस डिविजन हैज़ सम प्रॉब्लम्स, कि इस डिविजन में भी कुछ प्रॉब्लम है। आप प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को बताएं कृपया करके कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो दोज प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली, मैंने अभी आपको माइंड मैप समझाते हुए बताया था, दैट प्रॉब्लम वॉज दैट जो मॉडर्न पीरियड था, उस पीरियड को क्या किया हिस्टोरियंस ने, उसको मॉडर्न पीरियड को क्लासीफाई किया दैट दिस इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न थिंग्स, कि मॉडर्न पीरियड हैड इक्वालिटी, मॉडर्न पीरियड हैड डेमोक्रेसी, मॉडर्न पीरियड हैड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। So modern period was associated with all the forces of growth and development, but it was not true, because we know that when Britishers were there in India, at that time Indians were not having equality, Indians were not having democracy. Then how could you say that British period was modern? Right? So this modern period had all the forces of growth and development. This is wrong. तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी उन्होंने ये भी बोला कि जो मेडिवल पीरियड था दैट डिड नॉट हैव एनी साइन ऑफ डेवलपमेंट, कि मेडिवल पीरियड में कोई भी ग्रोथ, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई मेडिवल पीरियड में। तो ये भी गलत है। क्यों नहीं हुई जी? बहुत हुई है। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दैट बैटल ऑफ पानीपत बाबर, फर्स्ट टाइम कैनन्स वर यूज्ड इन दी वॉर,
सो इट वॉज नॉट डेवलपमेंट की कैनन्स तोपें यूज़ हो रही हैं वॉर में, इट वॉज द डेवलपमेंट रेट। सो यही एक छोटी सी प्रॉब्लम, आपको स्टोरी समझ में आ गई ना। अब इसी को 3 पॉइंट में डिवाइड करके लिख देना स्टोरी को। कैसे लिखेंगे आपके सामने है, एक बार पढ़ लो। 1 सेकेंड। ऑलवेज ट्राई टू राइट इंट्रोडक्टरी लाइन, अच्छी लगती है आंसर में लिखने में देखने में। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन हिस्ट्री बीइंग डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न आर, पहला है इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट मीन्स पता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट में एशिया है, इंडिया भी यहीं पर है। वेस्ट में थे ये ब्रिटेन वाले, तो ब्रिटिशर्स को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं तो इनको वेस्ट बोल देते हैं, हमें एशियन बोल देते हैं, या फिर हम ईस्ट वाले कंट्रीज़ हैं ना। So this periodization was borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. जिसमें कि modern period को किससे associate किया है, growth से, मॉडर्निटी वगैरह थी उस टाइम पे, जैसे कि साइंस था, लोग रीज़न करते थे, हर एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे रीज़न होता था, लॉजिक होता था, डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, तो ऐसे ऐसे इन्होंने एसोशिएट किया। बट अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। हमें पता है जी, बिल्कुल इंडियंस को पता है, इक्वालिटी थी ही नहीं, फ्रीडम था ही नहीं, लिबर्टी थी ही नहीं। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी नहीं थी। सब कुछ तो हमसे लूट के और ब्रिटेन में ले जाते थे, यू नो विच इज़ कॉल्ड दैट थ्योरी ऑफ दैट क्या बोलते हैं उसको, वेल्थ ड्रेन। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, हमारी जितनी भी वेल्थ थी उन सबको ड्रेन मतलब बहा के ब्रिटेन ले जाते थे। सो देयर वाज नो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ग्रोथ हो रही थी ब्रिटेन में, क्योंकि हमारे सारे रॉ मटेरियल्स को सस्ता खरीद के वहाँ पे ले जाते थे और फिर वहाँ से एकदम रेडीमेड गुड्स आते थे और यहाँ पे इंडिया में उनको महंगा बेचते थे। सो ये सब होता रहता था, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडियंस के लिए तो कुछ भी नहीं थी। फिर थर्ड पॉइंट है मेडिवल पीरियड को भी इन्होंने क्या बोला, इट वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। और उन्होंने ऐसे बोला कि मेडिवल पीरियड में मॉडर्न सोसाइटी वाला कुछ चीज़ थी ही नहीं। बट दैट वॉजन ट्रू फॉर इंडियन हिस्ट्री, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है, मेडिवल पीरियड में भी डेवलपमेंट हुए थे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Why did British नहीं, question is what did British do to preserve important official documents and letters? Important official documents और letters को preserve करने के लिए क्या करते थे, अभी तो बताया, हर एक ऑफिस के साथ एक रिकॉर्ड रूम अटैच कर दिया था, स्पेशल उन्होंने इंस्टीट्यूशंस ओपन कर दिए थे जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम। यही तो था छोटी सी बात, यही 3 पॉइंट में लिखनी है। कैसे लिखनी है, लेट अस सी। छोटी सी बात को बस एक्सटेंड कर देना है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ब्रिटिश को लगता था राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आगे उनको स्टडी और डिबेट किया जा सके। British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. ठीक बात है। So they set up record rooms attached to all the administrative institutions. तो हर एक administrative institution, you can also write office, हर एक ऑफिस से उन्होंने अटैच रिकॉर्ड रूम्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन बने जैसे कि आर्काइव्स और म्यूजियम, जहाँ पे कि उन्होंने क्या किया, दिस प्रिजर्व द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स इन दोज आर्काइव्स एंड म्यूजियम। छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल, डन। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड ब्रिटिश कॉन्क्वेयर इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर रूल। कैसे ब्रिटिश ने कॉन्क्वेयर किया इंडिया को और अपना रूल इस्टेब्लिश किया। सिंपल सी बात है, इंडिया में वो आए, उन्होंने देखा कि इंडिया में उस टाइम पे लोकल नवाब्स रूल कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में क्या थे, लोकल नवाब्स थे। जैसे ये पूरा इंडिया है, माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। समझ गए ना, मतलब ऐसे ऐसा सा ही कुछ इंडिया है, ठीक है। सो जैसे इस एरिया में एक नवाब था, इस एरिया में दूसरा, इसमें एक, तो मतलब रूलर को ही यहाँ पे नवाब बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रूलर्स जिनको नवाब बोल रहे हैं, लोकल नवाब रूल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, आके उन नवाब को वहाँ से हटा के और उनको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। और फिर काफ़ी सारे चेंजेस इंडिया में करने शुरू कर दिए, इंडिया का सिस्टम कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, और ट्रेड करते 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 ट्रेडर्स से वो धीरे धीरे रूलर बन गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को कॉन्क्वेयर करना शुरू कर दिया। सो ब्रिटिश केम टू कॉन्क्वेयर कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल बाय सब्जुगेटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजा। तो जो भी लोकल राजा थे, एरियाज़ के लोकल नवाब थे, उन लोगों को अपने अंडर ले लिया, कॉन्क्वेयर कर लिया इंडिया को। कैसे कि उन लोकल नवाब्स को और राजास को अपने अंडर ले लिया, सब्जुगेट कर लिया। दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। इकोनॉमी पे धीरे धीरे सोसाइटी पे अपना कंट्रोल जमाने लगे, जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें इंटरफेरेंस बढ़ाने लगे, तो धीरे धीरे कंट्रोल बनने लगा।
कलेक्टेड रेवेन्यू, धीरे धीरे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसकी पूरी हिस्ट्री हम लोग अभी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, कैसे हमने उनको राइट्स दे दिए थे रेवेन्यू के, मुगल्स ने उस टाइम पर राइट दिए थे, वो सब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। दे बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, मैंने आपको बताया इंडिया से हमारे रॉ मटेरियल को लो प्राइस पे खरीद के ले जाते थे और वहाँ महंगा सामान बेचते थे ब्रिटेन में। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स दे नीडेड टू एक्सपोर्ट, अब वही क्रॉप्स धीरे धीरे प्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी जो उन्हें बाहर एक्सपोर्ट करनी थी। ठीक है, सो इन दिस वे दे कंट्रोल्ड इंडिया एंड दे कन्क्वर्ड इंडिया। क्या किया, जो लोकल नवाब्स थे या फिर राजा कह सकते हैं, उनको कॉन्क्वर कर लिया, उनको सब्जुगेट कर लिया अपने अंडर। इसके बाद क्या किया, उन्होंने पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दे कंट्रोल द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और क्या किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग दी रेवेन्यू, धीरे धीरे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और क्या किया, दे बॉट गुड्स एट लो प्राइसेस एंड सेल देम इन ब्रिटेन एट हाई प्राइसेस, तो हमारे यहाँ के गुड्स भी खरीदने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे बेसिकली अपना कंट्रोल बनाने लगे, बायर्स बन गए हमारी कंट्री में आके। और उसके बाद क्या किया, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दोज क्रॉप्स, वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी जो उनको अपनी बाहर कंट्री में बेचनी थी। started producing those crops which they wanted to export to their country। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, what do you mean by export? इसका आंसर भी मुझे बताओ, एक्सपोर्ट क्या होता है, और इम्पोर्ट भी बताओ क्या होता है। what do you mean by export, what do you mean by import? बहुत कॉमन टर्म हो गया है आज, so you should know। ठीक है, लेट मी नो। देन आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन है जो कि हमें सर्विस के बारे में, यही क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, यही क्वेश्चन आना है सबके एग्जाम्स में। ठीक है, हाउ डिड सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट, सर्वे इंपॉर्टेंट कैसे बन गए, तो हमें पता है ब्रिटिश बिलीव दैट कंट्री नीड टू बी प्रॉपरली नोन, पहले कंट्री को जानो बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर, कंट्री को पहले जान लो तभी उसको अच्छे से रूल कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट इज बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत में डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री, तो कंट्री को पूरा मैप करने के लिए, कंट्री का पूरा मैप हाथ में लेने के लिए, कंट्री के बारे में जानने के लिए 19th सेंचुरी में ही सर्वेज शुरू कर दिए थे। विलेजेस में क्या होता था, गांव में होते थे रेवेन्यू सर्वेज, याद रखना है, अभी 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि विच टाइप ऑफ सर्वेज वर कंडक्टेड इन दी विलेजेस, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो याद रखना है रेवेन्यू सर्वेज होते थे, क्योंकि कौन से गांव से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उस गांव के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड इन दी विलेजेस टू नो दी टोपोग्राफी, पहले ये भी जानो कौन से गांव में कैसा सॉइल है, कहाँ पे ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उनसे ज़्यादा रेवेन्यू ले लेंगे, जहाँ पे प्रोडक्शन कम होता होगा, जहाँ का सॉइल फर्टाइल नहीं होगा उनसे थोड़ा सा रेवेन्यू कम ले लेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू सर्विस विलेजेस में कराए ताकि विलेज की टोपोग्राफी जान सके, उनकी सॉइल क्वालिटी जान सके, कैसा वहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, फ्लोरा प्लांट्स होते हैं, फौना एनिमल्स होते हैं, लोकल हिस्ट्री जान सके। ऐसा तो नहीं कोई राजा वहाँ पे ऐसा है जो हम लोग को वहाँ से भगा दे, या बहुत एडमेंट कोई लोकल किंग तो नहीं है वहाँ पे, तो लोकल हिस्ट्रीज़ के बारे में जाना उन्होंने। एंड क्रॉपिंग पैटर्न की कौन से टाइप की क्रॉप कौन से एरिया में, कौन से विलेज में कौन सी टाइप की क्रॉप वो ग्रो करते हैं, तो ये सब जानने के लिए रेवेन्यू सर्वेज विलेजेस में शुरू हुए। फिर आता है सेंसस, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। दी सेंसस आर डन टुडे ऑल्सो, हर 10 साल बाद सेंसस होते हैं, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स दी सेंसस आर डन एंड नाउ इट विल बी डन इन 2021 जो अभी चल रहा है। अभी तक हम लोग 2011 सेंसस में जो हमें डेटा मिला है वो यूज़ करते हैं, अब 10 साल हो गए, 2021 में नया आना था, बट दिस इज़ दी कोरोना टाइम, तो लेट्स सी हमारा सेंसस कब आएगा। ठीक है, तो सेंसस ऑपरेशन क्यों होता है, तो सेंसस पहले क्या होता है, दीज वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, तो यहाँ से एक 1 मार्कर बन गया कि क्वेश्चन आएगा सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स, 5, 10, 15, 3, कौन सा ऑप्शन होगा, 10 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग आंसर्स को, शॉर्ट आंसर्स को ऐसे लर्न करो कि वहीं से 1 मार्कर आ जाए, तो यू कैन राइट। और कहाँ से आएगा 1 मार्कर बताओ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी से तो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देख ही लिया है तो इसी में से 1 मार्कर आ जाएंगे। ठीक है, दीज प्रिपेयर्ड, अब क्या होता था सेंसस ये भी जान लेते हैं, क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाएगा व्हाट इज सेंसस। सो दीज वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स एंड दीज वर प्रिपेयर्ड these prepared detailed records of the number of people। अब क्या होता था सेंसस में, it was done to know about the number of people in the country और in the provinces, provinces का मतलब states होता है। noting the information on caste, कौन सी कास्ट, कितनी कास्ट हैं, कितने टाइप के रिलीजन हैं, लोगों की क्या ऑक्यूपेशन है, लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं या बिजनेस करते हैं या सर्विस सेक्टर में है। ठीक है, कितने रिलीजन्स हैं, लाइक इंडिया में आज 6 रिलीजन है, नेम दो 6 रिलीजन्स इन इंडिया, लेट मी नो किसको पता है कौन से 6 रिलीजन इंडिया में।
देन लोग की कौन सी कास्ट के ज़्यादा लोग हैं, कौन सी के कम हैं. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन अबाउट कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, मेल फीमेल population, their occupation, all this information is collected with the help of census. So census को हिंदी में जनगणना बोलते हैं, basically to know about the population. Then comes the last point, which is that there were many other surveys. फिर बहुत सारे अलग तरीके के और भी सर्वेज थे, जैसे कि ये क्वेश्चन 1 मार्कर में अलग से पूछा जा सकता है कि नेम एनी 3 सर्वेज विच वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा. तो बताओ कौन से होंगे. नेम एनी 4 सर्वेज विच वर कंडक्टेड, नेम एनी 1 सर्वे. हो सकता है 4 ऑप्शन दे देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे वॉज नॉट कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. तो इनमें से कोई आंसर होगा और एक इनमें से कुछ अलग लिख देंगे, वो वाला आंसर आपका हो जाएगा. ये वाला सर्वे नहीं होता था. तो यहीं से यहाँ से 1 मार्कर बन सकता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है. सो देयर वर मेनी अदर सर्वेज लाइक बोटानिकल सर्वे. बोटानिकल मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, इतना याद रखो. जूलॉजिकल, जू जाते हो ना घूमने, जू, तो जूलॉजिकल रिलेटेड टू एनिमल्स, बोटानिकल रिलेटेड टू प्लांट्स. ऐसे याद रखो, तभी तो लर्न होगा. बोटानिकल वर्ड याद ही नहीं होगा नहीं तो एक वर्ड एसोसिएट कर लो. बोटानिकल मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स के बारे में जानना है. So botanical surveys related to plants, zoological surveys, zoo related to animals, archaeological, archaeological digging to know about the ancient things, right? Then anthropological क्या होता है? Anthropological is, यहाँ से एक वर्ड याद कर लो, human behavior के बारे में जानने के लिए. To know about human behavior, we conduct anthropological surveys. ठीक है. देन फॉरेस्ट सर्वेज, फॉरेस्ट के बारे में जानने के लिए फॉरेस्ट सर्वेज. एंड दैट्स ऑल. 5 पॉइंट हो गए. क्या क्या पॉइंट हुए? पहला हुआ, दे बिलीव दैट कंट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कंट्री को अच्छे से रूल कर सकेंगे. सेकेंड पॉइंट, इसीलिए 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड कंडक्टिंग दी सर्वेज. थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे? दैट those revenue surveys were conducted in villages to know about the topography, soil, cropping pattern of the villages. फोर्थ में क्या लिख देंगे? सेंसस के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि देयर वर सेंसस विच वर डन आफ्टर एवरी 10 years टू नो अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर प्रोविंस, डिफरेंट कास्ट, टू नो अबाउट द रिलीजन्स, टू नो अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, हाउ मेनी आर मेल, हाउ मेनी आर फीमेल, व्हाट इज देयर education status, what is their occupation, what is their religion, what is their caste. तो ये सब के बारे में सेंसस था. और फिफ्थ आ जाएगा, देयर वर मेनी अदर टाइप्स ऑफ सर्वेज एज वेल, लाइक बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए. सारे सर्वेज का मतलब भी पता होना चाहिए कि बोटानिकल में क्या, प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जूलॉजिकल में क्या, एनिमल से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजिकल में क्या, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड. These things should be very much clear, and that's all about the chapter. अगर आपने इतना कर लिया, trust me, you are going to score full marks without any doubt. If you will do all these question answer, and also before watching this video, you should go to the summary video of the chapter. मैंने पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 12 मिनट में एक्सप्लेन की हुई है. 12 और 14 मिनट्स की ऐसी ही वो वीडियो है. आई हैव एक्सप्लेन होल ऑफ द चैप्टर इन अ समराइज मैनर. ठीक है, एक समरी मैंने दी हुई है, उस वीडियो को पहले देखो, वो वीडियो 1 होगी. उसके बाद इस वीडियो 2 पे आना, जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं. इतना कर लो, इस चैप्टर में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो मतलब 2 वीडियो से चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. 1 घंटा बैठ के कर लो, 1 घंटे में चैप्टर विल बी डन और आपके आ जाएंगे फुल मार्क्स. बट तब आएंगे जब उसको रिवाइज भी करोगे. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट द PDF ऑफ दिस, of these question answer, let me know. I will attach the PDF of this video. ये जो PDF जिससे मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी. ठीक है, इफ़ यू वांट द PDF, let me know. I will attach this PDF in my description box. So that's all about this chapter. These question answers, please do them and let me know if you are able to understand them. If you have any doubt, please feel free to ask them in the comment section down below. All right, thank you so much. Bye bye everyone, take care.